save ourselves from corona. So I would like to thank Mr. Yogesh from Ayurveda Sahi Hai to give us opportunity to Essential Veda, and I am representing Essentials Veda myself, Dr. Priyanka Gupta. Good morning, Yogesh ji. Good morning, Parul ji. So I'm just waiting that few more audience when join so we can start the session. Hope all of you are doing good. So meanwhile, I will just tell that, yes, I think, hello Arpit ji, every one of you must be now getting prepared to live with Corona. So this is the new normal which we all need to adapt. Yes. Good morning, Meenakshi ji. Meenakshi ji, from where are you? And I would like to keep suggesting if the language which you want to go with, I can go with English, I can go with Hindi, and even I can go with Punjabi. So these three languages I have bit of hold. Thanks Yogesh ji to give the opportunity to spread this word of awareness, how to now live with Corona and to win also, right? So if we are together, we will win, and we will definitely win. If all of us have seen, so just before coming to the main context, I would say that in India, if we see, the mortality is comparative to other countries is very less. So we have already proven it that we are much better than other countries when it comes to fight against these kind of viruses. And I personally believe this is because this is not a new discussion. We are in a country which is the roots of Ayurveda, and Ayurveda is nothing but the style of living, right? So this is basically the whole science of living being, how to live better. This is what Ayurveda says. Yes. So as we know that we have chosen the topic, how to win naturally against this COVID-19. So Yogesh ji, you tell me if I can go ahead with the main content, or I think I can wait little more 2 minutes. So meanwhile, who all are with us, Parul ji, Arpit ji, Meenakshi ji, and many others. So I would like to know that what is your opinion. You can pass in your comment box. We have raised one question that what is more important to win Corona, hygiene or immune? I know that if I'm not wrong, Yogesh ji, more than 95% have chosen for immunity. So almost everyone is aware that now if we want to survive, we need to work on our immunity, because not only corona is not a new thing. COVID-19 is new thing. Corona is very old. It was first in the form of MERS, then came in the form of SARS, right now came in the form of COVID-19. But this is again the virus, right? So I would not reveal the answer of this question on this point of time. I would reveal the answer of this question at the end of the session, and I would like to wait you, and it will be interesting how we conclude this answer. So this is very much looks obvious that if one choose between hygiene and immune,
So it looks like we should choose immune. Let's see how it goes and what is more important. And I would like to take your all opinion in the end of the session. So any of you would tell me first that what is virus? Anybody knows? You can put in the comment box. We will start our discussion that against what we are fighting, we are struggling, and we in India itself, we are under lockdown almost by 2 months. So I would like to know if we know that what is that. Anybody knows? Okay, I give a hint. Tell me, virus is living or non-living? Just write down, living or non-living. This is very easy to write down, right? Waiting for your answers. So nobody wants to answer this, that virus is living or non-living. I give you one more hint. In Ayurveda, this will be very interesting to know. Virus is known as bhoot. We all are scared of bhoots, right? This is the word we hear from our childhood. And we scare even the kids. Don't do this, bhoot aa jayega. Don't go in the night, bhoot aa jayega. And Ayurveda strangely says virus bhoot. Why? Because the characteristics, what we have assumed about bhoot, is very, very much near to all the microorganism, all the pathogens which are not visible. When we say it bhoot, that means which is not visible. So all the pathogens which are microorganisms and can spread something which is unhealthy can be known as bhoot. So little more coming to this part where we were saying that virus. So virus is actually in between as bhoot, not living, not non-living. How? I will just put little emphasis on this part. As we say that bhoot comes from evil. Bhoot comes from the non not following the proper mechanisms which nature has given us, or somebody has gone through a very, very strong emotional distress, right? So that time, and the same way the virus is originated. Ayurveda says that this is not the natural thing. This is an unnatural thing. And viruses are also between living and non-living. How? I will tell you. When viruses are outside the body, they are completely non-living. They cannot breathe, they cannot replicate, and they cannot move. Viruses don't move. Viruses don't move. We make them move. We bring inside our body ourselves. Nobody else can do that. So until and unless they are getting the proper environment, and that also one living environment, whether it is an animal body or whether it is an human body. So when they enter inside the body, that time only they catch the life. And when they catch the life, they are unstoppable. They multiplies in colonies, 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 but where? Inside and living body. This is a very, very required concept to know, when we want to know how to win over a virus.
So very first thing, that yes, we should not play with nature. We have understood till now this part. And second thing, as much as we will keep away the infected things and we won't allow them to get inside our body, we are safe. Right? So this is one part of the what I just explained about the virus. So I'm getting one request to add little Hindi also. So I will add little Hindi also in this part of awareness session. Let me again know if you want the change of the language. So now when we say about cleaning ourselves, हम कहते हैं कि हमको हमारे खुद को साफ रखना है, right? So we said that hygiene is the word for keeping ourselves clean, and cleanliness is considered equal to God, next to God. Whenever we worship anything, we do cleaning, right? So definitely hygiene is a very important factor. Now I will again remind the question that what is more important, immunity or hygiene? We have to wait. Let's see how it proceeds. Okay, this is what we want to do, but what we want to achieve with all that? Have we thought through that what we want to achieve finally? We say we need to increase the immunity. We say we need to keep the hygiene. What all we want to, achieve from this? But I have understood that now in a population, very dense population in India, this is very difficult to avoid completely each and everything. We have to be little bit in contact of everything. Exposure is not unavoidable completely. तो जब हम कहते हैं कि हमको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट्स में आना पड़ेगा ना, अभी ऑफिसेज भी शुरू हो रही हैं, ओके, काम के लिए जाना पड़ेगा. What we want to achieve, I would like to just say that there is one theory. Whenever something comes, right, the theory of Darwin, we need to go with that theory of adaptability. We need to learn to adapt. How we can adapt? It is easy to say. We have to definitely make immune ourselves, right? More and more people, when will struggle, will fight with this virus, will become immune. इम्यून कैसे आएगा? वायरस से लड़के. ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिया में जितने लोग डायग्नोस हुए हैं इन्फेक्टेड, उनमें से 70% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं. दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी इम्यून फॉर देमसेल्व्स. अभी क्या करना है? अभी हम सबको एक दूसरे को इम्यून बनाना है, राइट? तो एक दूसरे को इम्यून कैसे बनाएंगे? वन, कीपिंग द सोशल डिस्टेंसिंग. सेकेंड, spreading the awareness. Third, more and more immune people when are in the population, chances of getting infected people will be less. So if you have 10 people in a place, earlier there were 2 people who were infected, suppose, and they had a possibility to make all 8 people infected. Now, if I make out of that 10 people, 5 people immune, then chances of making infection is left only to 3 people. I would just like to share this part with you.
Yes. So Manish Sharma ji, I will come to your query. Yes, Manish Sharma ji have said this very, very well, that it remains inactive whenever it is on the surfaces. It becomes active only when it comes in contact inside in the living organism. Yeah, so Meenakshi ji is saying this is microscopic. Definitely. This cannot be seen by naked eyes. So yes, Manish ji, you are saying immunity is more important. So let's complete the session and we will come back to this part. You are saying that hygiene is also very important. Yes, rightly said. Okay, sure. So just allow me to share. Let me check. Okay, I think. Okay, I'm not able to share my screen, no problem. But I think we have understood that in the population of 10, we were making 5 people immune and then we should go to 7, 8. So more and more people immune, we are going to win the struggle. Okay, now when we speak about hygiene, right? So there are 3 main factors. One is hygiene, one is social distancing, and one is immunity. Immunity again is of 3 types. One is innate immunity, one is acquired immunity, and one is herd immunity. Innate immunity is what we have. And the reason I told that हम सब लोग अभी तक as compared to other world, we are not that much in the dangerous state. Okay, more than 1 lakh people are infected, but still the mortality is 3,000 something, right? So that means 3%. Why? Because हम लोगों के पास natural immunity already है. We have got it from our elders. We have got it from our earth. We have got it from our air. This is still have the positive waves that we have, that this innate immunity. और इसी को ही हमने बढ़ाना है. Why? What is acquired immunity? Acquired immunity जो हम कहीं बाहर से लेते हैं. ठीक है, आई कैन रिलेट इनेट इम्यूनिटी माई सेल्फ स्टडी, जो मैं खुद पढ़ती हूँ, जो मुझे मेरे मम्मी पापा पढ़ाते हैं, जो मुझे घर में ही पढ़ाई मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं, दैट इज इनेट इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो मैं बाहर जाके लेके आ रही हूँ, ट्यूशंस, राइट, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो नाउ what is acquired immunity in case of virus is vaccine. No medicine is there to give the immunity. Medicine in the sense that some pill, some injection that I give you and you get the immunity. No, we cannot do like that. Okay, so only and only in the medical science, only one thing which is left for the cure of the virus is vaccine. Vaccine means we develop some kind of virulence against this pathogen. And to develop a vaccine ideally needs 2 years. So we all are aware that this is very, very deficiency of time. नहीं है अभी हमारे पास उसका कोई cure in medical science. Right? So what is left with us? हमारा खुद का innate natural immunity बढ़ाना. कैसे बढ़ाएंगे? We will see. There is third kind of herd immunity, what I told you. As many as people while struggling with the virus is becoming immune, that is called herd immunity. So finally we need to reach that state where 8 people out of 10 are already immune, right? Now mainly 2 things we have. One is hygiene and one is immunity. Okay, so what is hygiene? We know one is cleaning. Hygiene
cleaning everything, cleaning this, what we are doing these days. If the milk packets are coming, we are washing. And if the vegetables are coming, even few people are washing it with the soap. So it is not advisable to wash it with the soap. You just run through it the water, okay, properly. And if you need, you can soak it for 30 minutes in some मीठा सोडा, और आप उसको नमक भी थोड़ा डाल के थोड़ा देर के लिए रख देंगे तो भी वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। डिटर्जेंट्स एटसेट्रा खाने की चीजों के लिए यूज मत कीजिए, दैट कैन बी रिस्की फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं हो कि फायदा मिलने की जगह पे हम नुकसान कर लें। तो दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इटसेल्फ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सफाई रख रहे हैं, राइट। इस सबको जस्ट क्विकली, बिकॉज हमने बहुत सुन लिया है, तो आई वोंट डिस्कस मच ऑन दिस फैक्टर, right? I call it external hygiene, and I can wind up it from the word from where this disease came. कहां से आई ये डिजीज, ओरिजिन कहां से हुई? वुहान कंट्री ऑफ चाइना, राइट। सो लेट्स रिमेंबर द हाइजीन फ्रॉम वुहान itself. W, wash your hands, wash your eatables, wash your vegetables, wash your fruits, right? And wash everything what you can is for W. Then Wuhan, U, use properly mask. When I say mask, it doesn't mean every time you should be in mask. I'm speaking to you, I am in my house, right? You people are also in your house, no need of mask. When you are going outside, that time only wear mask. That is the proper use of mask. And also, again, you need to see what intensity of the mask. Is it not that thin, which is not able to stop the air coming inside? So you can even take the thick handkerchief and just tie it over your mouth. That is also working, okay? So this is use mask properly. And you should not go insane about the mask, because sometimes it will stop the oxygen supply also. Okay, oxygen is a big point. I will be keep taking it along with our session. So now what we are saying, proper use of mask. Now coming to H word, right? So H is have a control, have a check on your symptoms. What are the symptoms? Fever, cold, cough. Sometimes it can only be diarrhea, or sometimes it can be tiredness, right? These all kind of symptoms, you need to be very, very careful. If you are having these symptoms, we will discuss further what all we need to be thinking. This is one part. Now coming to A. When we say A, avoid. What to avoid? Avoid, very first thing, crowds, right? Social distancing is the way out to avoid the crowds. Avoid outside food. Most important. Okay, दो तरीके से हमको वायरस को रोकना है। एक, हमारे एयर के माध्यम से, जब हम बहुत किसी के नजदीक होंगे, इट वर्क्स मोस्टली इन अ क्लोज एरिया ऑफ 1 मीटर. सो एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस हमको आपस में रखना ही रखना है, ठीक है। इस वायरस का थिक ड्रॉपलेट्स होता है, तो वो बहुत दूर तक, अभी इतना ही जानकारी है, जानकारी चेंज भी होता रहता है, ठीक है। बट आप जितना मैक्सिमम डिस्टेंस रख सकते हैं, दैट इज वेरी फ्रूटफुल. इट सेटल्स डाउन ऑन द सरफेस, तो सरफेसेस को छूना नहीं है. अवॉइड टचिंग अननेसेसरली द सरफेसेस. अवॉइड क्राउड, अवॉइड touching unnecessarily the surfaces, and avoid taking outside food. वो फूड इन्फेक्टेड है, आपके अंदर गया तो आपने वायरस अंदर ले लिया. इट इज नॉट ओनली अबाउट द कोरोना वायरस, इट इज ऑलवेज अबाउट एवरी वायरस, राइट. अभी कोरोना आया है, अभी ये कोविड-19 आया है, जो कि एक अलग प्रोजेनी है कोरोना की. इससे आगे और भी कोई भी भाई बहन कोरोना के आ सकते हैं. तो वी नीड टू लर्न हाउ टू कीप आवरसेल्फ सेफ ऑलवेज. सो कमिंग बैक टू वर्ड वुहान, W is wash your hands, wash your vegetable, wash your fruits, wash everything whatever is in your contact.
you use mask properly, have a check on your symptoms, fever, tiredness, cold, cough, and maybe diarrhea. Okay, then A, avoid crowds, avoid touching unnecessarily the surfaces, and avoid outside food. And no touching to your main face parts. Okay, we should not keep rubbing our eyes, we should not keep taking our the people who have a habit to bite their nails should really be very conscious. This is the most dangerous thing, particularly in this time, right? So this is the complete way of, this includes almost everything what we speak about the external hygiene. This comes in this itself word Wuhan. Now, is hygiene limited only externally? This is my question. I would like to listen from you. Is hygiene only external? Yes, Vandana ji, I will come to your query. You have asked about the pregnant ladies preventing the corona. In the last of the session, we will take this query. Sure. Yeah. So would somebody reply this part? Is hygiene only external? No, right? So hygiene is internal only. Mostly what we do, we take the bath, we occasionally shampoo our hair, right? Twice in a week, but we take the bath daily. Same way, we need to clean our internal body also. We need to make a regularity in cleaning our body. Always. क्या करते हैं हम? रोज नहा लेते हैं, रोज झाड़ू लगा लेते हैं घर का, कभी कभी सिर धो लेते हैं, ठीक है. इंटरनली नहीं देखते हैं. इंटरनली क्या है क्लीन करने के लिए? फ्रॉम आवर माउथ, नोज, आईज, ईयर से लेके आपका पूरा का पूरा अंदर का सिस्टम क्लीनिंग मांगता है, राइट? एक क्लीनिंग जो आपको डेली, नॉट इवन योर बॉडी, इवन द माइंड ऑल्सो. प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. एंड WHO ने भी बोला है, हेल्थ क्या है? माइंड, बॉडी एंड योर सोल. इन तीनों का बैलेंस, हार्मनी इज हेल्थ, नॉट ओनली बॉडी. ओके, जब WHO ये बात मान रहा है तो व्हाई नॉट अस? सो वी नीड टू क्लीन our thoughts, our mind, our body, each and every, not externally, internally, each and every part of our body we should clean, right? Ayurveda adds one more factor in this. WHO says, when explains health, mind, body and soul, Ayurveda adds social wellness also in this health aspect. मतलब हम ही नहीं, हमारे आसपास भी सब खुश रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए. हमारा परिवार भी खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए. हमारे नेबर्स भी खुश रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए. अगर हम स्कूल में हैं तो हमारा सारा ग्रुप स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है? स्वस्थता एक चीज है जो स्प्रेड होती है. इस बात को हमको मानना पड़ेगा, राइट? और कहां से शुरू होती है? आपके मेंटल वेलबींग से. एक पर्सन स्माइल करता है, आपका भी मन करता है स्माइल करने का. एक पर्सन गुस्सा में है, आपका मन नहीं करता उससे बार बार बात करने का. यू विल चूज द पर्सन हु इज लाइवली, हु कीप स्माइलिंग. क्यों? क्योंकि आपको उससे बात करके अच्छा लगता है. दैट इज मेंटल वेलनेस. एंड मेंटल वेलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन विच इज गिविंग मेंटल वेलनेस टू यू बाय थ्रू द सोशल वेलनेस. तो सबसे बात करते रहना चाहिए.
राइट और अभी तो हमको अच्छा खासा टाइम मिला है। आई डोंट नो, मतलब मैंने भी सोचा था बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना टाइम नहीं मिल पाया, फिर भी कम पड़ गया ये टाइम कि मैं सबसे बात कर पाती। बाकी सब वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट विल गोइंग सो मच, बट स्टिल I was able to little make my social connections back. And I hope everyone could do that. So this is one way to know health, right? Now coming back to the factor hygiene. When we say hygiene is internal cleaning also, right? क्या करना है हमको उसके लिए? सबसे पहले हमको अपने दिन का रूटीन बनाना है। हमें हमारे माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है कि कभी रात में बहुत लेट सो रही हैं और कभी रात में सो ही नहीं रही हैं। जल्दी सोना तो आजकल ट्रेंड में ही नहीं है, राइट? तो हमको अपने सोने का टाइम थोड़ा जल्दी करना है, उठने का टाइम थोड़ा जल्दी करना है, ताकि बॉडी को पूरा रेस्ट मिल पाए और इसी टाइम में आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन कर पाती है। दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म टू क्लीन योर बॉडी, जिसमें बॉडी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपकी बॉडी खुद अपने आप को क्लीन कर लेती है। ठीक है, थोड़ी बातें हैं इसके लिए ध्यान रखने के लिए जो मैं आपको बताऊंगी, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, सबसे पहले अपनी बॉडी को, अपने माइंड को क्लीन रखने के लिए सबसे पहला फैक्टर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। दूसरा, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए और पूरी नींद लीजिए, कम से कम 8 to 9 hours, नहीं तो कम से कम 6 hours का। आई वोंट से एवरीबडी इज कैपेबल टू हैव फैसिलिटी टू हैव 8 to 9 hours sleep, बट 6 hours इज मिनिमल विच फॉर एडल्ट्स। अभी ये टाइम्स बहुत सेंसिटिव है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, ठीक है? तो और उन लोग के लिए टाइम भी है, बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हैं, बड़ों के पास भी बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो आई विल से लेट देम स्लीप फॉर 9 to 10 hours, डोंट वेक अप देम, let's take the responsibility our age and we can keep them calm so that क्या होगा, उनका बॉडी खुद को मोर क्लीन करेगा, उनका बॉडी बहुत क्लीन हो जाएगा, तो आप कोई भी चीजें जब उनको स्ट्रेंथ के लिए देंगे तो वो बॉडी में जाएंगी। आप जानते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज बेस्ट बनाना है तो सबसे पहले क्लीनिंग जरूरी है, राइट? क्या करते हैं हम हमारे फेस्टिवल्स पे, हमारा घर बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, एक्सटेंसिव क्लीनिंग चलता है उस टाइम पे, रेगुलर क्लीनिंग हम करते रहते हैं, राइट? बट फेस्टिवल्स के टाइम एक्सटेंसिव क्लीनिंग करते हैं। वही डिफरेंस है जो हमारे नेचुरल इम्यून और जो हमें कोरोना कोविड-19 के लिए अभी चाहिए। क्लीनिंग इंटरनल पहले भी जरूरी था, मे बी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा सीख भी जाएंगे, राइट? लेकिन अभी इस टाइम पे हमें एक्सटेंसिव क्लीनिंग जरूरत है, स्पेशली हमारे किड्स और हमारे एल्डर्स के लिए। तो 2 बातें मैंने उनको बताई, उनको रिलैक्स रखना है, उनको बहुत ज्यादा हर बात में स्ट्रेस नहीं देना है, एंड सेकंड थिंग, उनको स्लीप प्रॉपर देना है और हमने भी खुद पे वो अप्लाई करना है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा, हमारे लिए थोड़ा नॉर्मल, राइट? नाउ और क्या आता है रेगुलर क्लीनिंग में? हम ब्रश करते हैं, वी क्लीन आवर टीथ डेली, राइट? दिस इज लिटिल इंटरनल पार्ट। अभी और क्या करना है, हमको फ्लॉस करना है हमारा टीथ, कम से कम 2 बार से 3 बार ब्रशिंग करना है। डेंटल हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार की सूजन है तो आप ट्रस्ट कीजिए मुझे, आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन हो सकती है। बहुत बार बॉडी में एक फैक्टर है जिसको सीआरपी बोलते हैं, जो बताता है कि बॉडी में सूजन है, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ डेंटल इन्फ्लेमेशन की वजह से रहता है, और जब एक बार आ जाता है तो और कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है। तो डेंटल हाइजीन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको इसके साथ साथ, फ्लॉस के साथ साथ आपको ऑयल पूलिंग करना है, कोकोनट ऑयल से या किसी भी ऑयल से, या इवन आप मिल्क से भी ऑयल पूलिंग कर सकते हैं। ऑयल पूलिंग मतलब आपको मुंह में एक लिक्विड भर के घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, 5 मिनट तक उसको घुमाते रहना है। आपके माउथ में जितने भी टॉक्सिन्स एंटर किए थे वो गले में जाएंगे ही नहीं,
आप 5 मिनट उसको घुमा के उस लिक्विड को बाहर निकाल देंगे, उसको अंदर नहीं लेना है, उसको बाहर निकाल देना है, राइट। जब आप उसको बाहर निकालेंगे ये टॉक्सिन्स अंदर गए ही नहीं, हम थ्रोट, इवन थ्रोट तक जाने का मैकेनिज्म खत्म कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द माउथ क्लीनिंग। और क्या कर सकते हैं, गार्गल्स। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यस कुछ पार्ट मेरे थ्रोट तक भी गया और जो जाता ही रहता है, तो नेक्स्ट पार्ट इज गार्गलिंग। गार्गलिंग किससे करना है, गर्म पानी से कीजिए, हो सके तो उसमें हल्दी और सेंधा नमक मिलाइए। सब कुछ आपकी किचन में है, ये बात याद रखिए। आपको कुछ भी बाहर नहीं देखना है। आपको क्लीनिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए जो आज हम बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है, इसके लिए आपको कहीं भी कुछ नहीं देखना है, सब कुछ आपकी इंडियन किचन में अवेलेबल है। तो जैसा मैंने कहा, गार्गल्स के लिए आप पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी मिला लीजिए, अगर आपके पास मुलेठी पाउडर है तो मुलेठी पाउडर मिला लीजिए, और कभी कभी इसमें आप थोड़ा उबालते हुए चाय पत्ती भी मिला सकते हैं, उसको छान के उससे कीजिए। चाय पत्ती एस्ट्रिंजेंट होती है, हल्दी एंटीबायोटिक होती है, सेंधा नमक जो भी इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने का पावर रखता है, ठीक है। और मुलेठी एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ को बाहर निकालने का माध्यम है, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिया था ऑक्सीजन, एक दूसरा वर्ड ले रही हूं अब कफ। कफ को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस। इन दोनों बातों को याद रखिए, मैं थोड़ा सा इन पे डिटेल आपको बताऊंगी, राइट। तो हमने गार्गल्स करके हमारे इस मैकेनिज्म, हमारे थ्रोट को भी क्लीन कर लिया, राइट। आईज वॉश कीजिए। आईज आप त्रिफला वाटर से वॉश कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल छींटे मार के भी कर सकते हैं। बेस्ट वेज आईज क्लीन करने का, आप पानी से कीजिए, आप त्रिफला वाटर से कीजिए, आप किसी से भी कीजिए। सबसे पहले मुंह में पूरा पानी भर लीजिए, ऐसा, राइट। जब आप ऐसा करेंगे आपका आई बॉल ओपन हो जाएगा, आप पानी के छींटे डालेंगे तो पूरा का पूरा चारों तरफ वो पानी जा पाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसको पूरा मुंह को फुला के रखिए और उसके बाद पानी के छींटे मारिए, आपकी आंखें बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी, राइट। स्किन से हम थोड़ा अंदर जाना शुरू हुए हैं। ईयर्स, ईयर्स में कभी कभी आपके घर में हर वक्त लहसुन रहता है, लहसुन सरसों का तेल में पका के या तिल के तेल में पका के उसको कभी कभी ईयर में डाल लीजिए। हफ्ते में एक बार आपके ईयर पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे और उसमें उसको कॉटन स्वैब से क्लीन करके कॉटन स्वैब फेंक दीजिए, राइट। सो ये तो हुआ हमारा जहां से हम वायरस को अंदर ले सकते थे, उन पार्ट्स का हमने क्लीनिंग कर दिया। नोज को क्लीनिंग, नोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है नोज क्लीनिंग? पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट। जितना आप ब्रीदिंग अच्छे से करेंगे उतना ही आप, जितना जो भी डस्ट, वायरस जो भी आपने अंदर लिया था आप उसको बाहर फेंक देंगे। आप अभी तक इंडिया में रहते हुए आप ऑलमोस्ट सभी प्राणायाम विच इज कॉल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज उससे फेमिलियर है। मैं इस सेशन में इसको बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं लूंगी, अगर आपका डिमांड रहा या हमने आगे जैसे हम प्रोसीड करते हैं तो किसी और एपिसोड में इसको बहुत डिटेल में लूंगी। बट आपको पता है कपालभाति, अनुलोम विलोम, राइट। कपालभाति में हम एक्सपेल करते हैं, तो जो भी आपकी बॉडी में है वो आप बाहर 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 फेंकते जाएंगे। अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग रहता है, आप बॉडी का बैलेंस भी बनाते हैं, आप क्लीन भी करते हैं, आप हार्मनी भी क्रिएट करते हैं। वेरी वेरी गुड फॉर द these cleaning purposes. Again, Bhastrika is also very important pranayam to keep your nasal hygiene, right? इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के यहीं तक नहीं उपयोग है, ये आपके साथ साथ जैसे ही, बिकॉज क्या हो रहा है, आप वायरस को बाहर निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अंदर क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्लीन एनीथिंग। आपको जहां पर भी, चाहे आपको एक्सटर्नली क्लीन करना है चाहे आपको इंटरनली क्लीन करना है, आपको बस एक ही बात माइंड में ध्यान में रखनी है। मैं सिर्फ बहुत ही फॉर्मूला टाइप आपको यहां पर बताऊंगी और जब भी हमें मौका मिला मैं उन पे और ज्यादा डिस्कस करूंगी। पहली बात, आपको जो चीज
वहां रुकी हुई है उसको हटाना है, चाहे वो कफ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, चाहे वो म्यूकस है, चाहे वो आपके माउथ में है, ईयर में है, नोज में है, या फिर आईज में है, आपके थ्रोट में है, और यही नहीं आपके पूरे अंदर के सिस्टम में भी म्यूकस हो सकता है, यहां तक कि आपके ईच एंड एवरी पार्ट। इसी को आयुर्वेदा कफ कहता है। और इवन आपके ये बॉडी में कहीं ना कहीं आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो आपको हटाना क्या है? हर जगह से म्यूकस, कफ हटाना है। आपको लाना क्या है? ऑक्सीजन, राइट। जितना ऑक्सीजन लाएंगे वो खुद ही म्यूकस को हटाएगा। जितना म्यूकस हटाएंगे वो उतना ही चैनल्स प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को और अंदर और अंदर और अंदर आने का। तो यही दो तरीके हैं जिनको आपने हर चीज पे देखना है। जो भी मैं आपको बताने जा रही हूं आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, और जो भी आप एक्टिविटी करिए आप हमेशा अपने उसमें ध्यान रखिए, मैं इस एक्टिविटी से क्या गेन कर रही हूं, क्या गेन कर रहा हूं, राइट। क्या मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, क्या मैं म्यूकस हटा रहा हूं। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जब आप सोते हैं, जब आप ढंग से सोते हैं, आप बहुत नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन उतना 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 हर बॉडी पार्ट को इजीली चला जाता है, ठीक है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप ऑक्सीजन 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 अंदर ले रहे हैं, राइट। जैसे इसने आपके पैसेजेस को यहां क्लीन किया, वैसे ही ट्रस्ट मी इट विल क्लीन इंटरनल। कैसे करेंगे इंटरनल क्लीनिंग? लेट्स गो लिटिल फॉरवर्ड फ्रॉम द आर पार्ट ऑफ थ्रोट। हमने बोला थ्रोट को हमने गार्गल से क्लीन कर दिया, ठीक है। अभी ये तो यहीं तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो हमने अपनी फूड पाइप और एयर पाइप को कैसे क्लीन करना है? वन वे एज लाइक, जैसा हमने बोला ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एनी एक्सरसाइजेस अलोंग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कोई भी एक्सरसाइज आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देगा और आपकी बॉडी को क्लीन करेगा फॉर श्योर। बहुत सारी यौगिक क्रियाएं हैं जो कि एक पर्टिकुलर उस पार्ट को क्लीन करती हैं, ठीक है। आपके लंग्स को क्लीन करती हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि चक्रासन आपने बच्चों को करते हुए देखा होगा, भुजंगासन करते हुए देखा होगा, योगियों को करते हुए देखा होगा। सो we can search these on the YouTube and you can request me. I can share in your personal mails also. Anytime, any information you need, you can contact Essentials Veda, right? तो ये सब क्या करता है? आपके चेस्ट को ब्रॉड, आपके चेस्ट को इन्फ्लेट करता है। और जब आप इन्फ्लेट करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन अंदर आने की कैपेसिटी रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक पुश के साथ बाहर चले जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि योगा is the most important thing to clean your body. आपकी बॉडी को इम्यून बाद में मिलेगा, पहले ये क्लीन करेगा, राइट। कैसे क्लीन करेगा? बहुत ऑक्सीजन अंदर आने देगा और पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। अभी जैसे मैं जब आपसे बात कर रही हूं तो ये संभव नहीं है कि मेरा पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए और पूरा का पूरा ऑक्सीजन अंदर चला जाए, इसलिए मुझे स्पेसिफिक टाइम देने की जरूरत है, राइट। सो उसी तरीके से हर उसमें तीन चीजों का आप ध्यान रखिए जो आपको आयुर्वेदा हमेशा हर मैकेनिज्म के लिए तीन चीजें बोलता है: आहार, विहार और औषध। हमने विहार की बात की कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, ये इस तरीके की क्रियाएं करेंगे, यौगिक क्रियाएं करेंगे, प्राणिक क्रियाएं करेंगे। और जब हम बोलते हैं ऑक्सीजन की बात तो याद रखिए वही प्राण है। ऑक्सीजन इज कॉल्ड प्राण, दैट मीन्स लाइफ, राइट। कैसे ले सकते हैं? अगेन डाइट के थ्रू, आपका एक्सरसाइज के थ्रू, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज एंड फ्यू हर्ब्स आल्सो गिव्स यू ऑक्सीजन। वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर आई विल ब्रिंग इन। पहले हम डाइट के बारे में बात कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डाइट में ऑक्सीजन देती हैं, ठीक है। कैसे आप ऑक्सीजन का सप्लाई डाइट के थ्रू बढ़ा सकते हैं? पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात जब हम डाइट के बारे में करते हैं, इट इज नॉट कम ओनली कम खाना, नहीं, बैलेंस्ड खाना, अच्छा खाना। हमें पता है कि हेल्दी डाइट खाना, राइट। लेकिन वो हेल्दी, मान लीजिए मैंने फ्रूट्स खा लिए, राइट, बट एम आई श्योर दैट मैंने वो हेल्दी खाना लिया है लेकिन वो मेरी बॉडी को हेल्थ देने वाला है या नहीं? उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है।
हेल्दी खाना जानने से पहले हेल्दी हैबिट्स जानना जरूरी है, जो आपकी बॉडी को क्लीन रखती हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है, प्लीज इसको आप नोट करना चाहें तो नोट रखिए, याद रख सकते हैं तो याद रखिए। एक खाने के ऊपर जब तक वो खाना नहीं पचे दूसरा खाना मत खाइए। दिस इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग विच वी आर डूइंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू must will be aware of this part, right? हम पूरा दिन, almost all of us are involved in this practice. हमको हमारे खाने में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमने एक खाना बिना पचे दूसरा खाना खा लिया तो डेफिनेटली वहां पर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और आपकी बॉडी में चैनल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, राइट? दिस इज माई चैनल, दिस इज, यू कैन सी नाउ। यहां पर अभी खाना क्लियर नहीं हुआ, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के चैनल्स ही इस तरीके से पड़े हुए हैं। दिस इज नॉट लाइक दिस, राइट? तो हमें जब तक प्रॉपर अगली भूख नहीं लगे, बच्चों को भी यही प्रैक्टिस करवाइए, खुद भी यही प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द मेन पार्ट। उसके बाद आप जो भी खाएंगे आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। वो आप थोड़ा इधर उधर भी खा लेंगे तो उसका न्यूट्रिशन आपको पूरा लगेगा। अदरवाइज आप अमृत भी ले लीजिए तो वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस यू आर गोइंग विद दिस हैबिट, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखना है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, राइट को जितना हम राइट को जानना चाहते हैं उतना ही साथ में हमको ये जानना है कि हम अभी तक रॉन्ग क्या कर रहे थे। दूध के साथ नमक लेना, दूध के साथ अंडे लेना, राइट? दीज आर वेरी वेरी मच practices which keep going on but very very wrong. Trust me, this is the most common factor for producing skin diseases. और जब skin disease आती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर के चैनल्स ब्लॉक हैं। स्किन आपका लास्ट टिश्यू है, ठीक है? अंदर पूरे चैनल ब्लॉक हो चुके थे, इसलिए स्किन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है और स्किन पे प्रॉब्लम आया है। खट्टी चीजें दूध के साथ नहीं लेना है। कच्चा और पक्का खाना एक साथ कम से कम लीजिए। अगर आप सैलेड खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सैलेड बहुत अच्छा खाना है, लेकिन उसको कोशिश कीजिए खाने के 1 घंटा पहले खाने, आपका जो मेन मील है पक्का खाना है उससे 1 घंटा पहले खाने का या 1 घंटा बाद खाने का। खाने के साथ पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। अगर आप खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी लेंगे वो आपकी अग्नि को पूरी तरीके से बुझा देगा। दैट इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। रात में देर तक जगना नहीं है और देर से खाना नहीं है। अगर आप देर में खाएंगे तो उस खाने को पचने का टाइम नहीं मिलेगा और वो अगेन आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करके रखेगा। क्योंकि सोते हुए हमारा ब्रेन प्रैक्टिस में है कि उसने ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम को सिर्फ 2-3 घंटे तक देना है खाने के बाद, राइट? सोते हुए पूरी बॉडी में चैनलाइज होता है, पूरे वाइटल ऑर्गन्स को रिवाइव करता है, रिजुविनेट करता है, हीलिंग में लगा होता है वो पूरा का पूरा ब्लड, पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई हीलिंग करने के लिए होती है। उस टाइम पे अगर आप खाना आपका डिस्टर्ब करेगा, ना तो हीलिंग ढंग से होगी और ना खाना ढंग से डाइजेस्ट होगा। This is the reason why it is advised to have early dinner. क्यों हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कारण ही नहीं पता होता कि हमको उससे नुकसान क्या हो रहा है। तो जब हम ये जान लेंगे कि हमको इससे ये नुकसान हो रहा है, तब हम उसको प्रैक्टिस अडेप्ट इजीली कर सकते हैं, राइट? और क्या रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं? दूध के साथ मछली खाना, ठीक है? रिफाइंड ऑयल इज द बेस्ट रॉन्ग कॉम्बिनेशन। हमारे खाने के साथ सबसे बड़ा बैड कॉम्बिनेशन रिफाइंड ऑयल है। जब से हमने रिफाइंड ऑयल को जगह दी है हमारी किचन में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। रिफाइंड ऑयल में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, प्लीज माइंड इट।
गो बैक टू योर ट्रेडिशनल ऑयल्स, गो बैक टू योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। आपके पैलेट के अकॉर्डिंगली, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको तेल पसंद है, अगर आपको सरसों का तेल पसंद है, प्यूरिफाइड लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड लीजिए, बट रिफाइंड मत लीजिए। रिफाइंड मतलब उसमें से सब कुछ निकल गया, बार 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 गर्म करके उसमें कुछ नहीं बचता है, बट आ क्या जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर द फैट्स विच आर मोस्ट harmful for your body. We can again have a complete session on that, but as we need to cover multiple things, I will just bit fast on this part. हमने क्या समझा कि हमको रॉन्ग कॉम्बिनेशंस नहीं लेना है खाने में। अब राइट क्या लेना है, राइट बहुत सारा हमको विटामिन सी लेना है। हमको ध्यान रखना है हमारा विटामिन डी का लेवल, हमारे विटामिन बी 12 का लेवल, और हमारे एचडीएल मतलब गुड फैट्स का लेवल हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से रहे। ये कब रहेगा, जब हमारा जो मील है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाएगा। इस तरीके का मील जो आपको लेना है जो ऑक्सीजन हाई हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दिस इज ऑक्सीजन हाई मील। जितना आप इसको खाएंगे, जितना अभी बिकॉज दिस इज वायरस टाइम, आप वेजिटेबल्स को हल्का सा स्टीम करके ले सकते हैं, सो दैट जैसा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें थोड़ा वर्म्स का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो स्पिनच को आप थोड़ी देर के लिए ब्लेंच कर दीजिए, गर्म पानी में डाल के रख दीजिए, उसमें कोई भी इसी तरीके से कैबेज को, कॉलीफ्लावर को, ठीक है, ब्रोकली को, इन सभी को इस तरीके से आप करके रखेंगे तो इनमें से वर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इनका एब्जॉर्प्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। हम में से बहुत लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, रॉ सैलेड्स नहीं खा पाते हैं, नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो उनको भी ये डाइजेस्ट करने में बहुत इजी रहेगा। बट वाई वी शुड हैव दीज फूड्स, बिकॉज दीज आर ऑक्सीजन रिच फूड्स, fruits and vegetables, and that's why this is called antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनके साथ वो बाइंड होके बाहर निकाल देंगे उनको। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द अनदर फैक्टर ऑफ, दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ फूड्स। जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए आंवला सबसे टॉप पे आंवला आता है। आपके घर में 2 लेमन है, आप 1 लेमन डेली का लीजिए, इट विल कंप्लीटली मीट योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी की। बहुत ज्यादा डेली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमको टेबलेट्स वगैरह अंदर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोज आर द आर्टिफिशियल थिंग्स, बॉडी उसको 5% एक्सेप्ट करती है, 95% स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल देती है, ठीक है। वो क्या पसंद करती है, जो नेचुरल तरीके से आता है। दैट कैन बी वेरी शॉर्ट टर्म एंगल टू टेक द थिंग्स, जब आपको और कोई तरीका नहीं हो। बट विटामिन सी आप गुआवा से ले सकते हैं, आप ऑरेंज से ले सकते हैं, ठीक है। एंड जैसा मैंने आपको बताया आंवला, आंवला का चूरन ले सकते हैं अगर इस सीजन में फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है। आंवला की रसायन की फॉर्म में ले सकते हैं जो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा और आपको विटामिन सी भी देगा। और हीमोग्लोबिन इनका एब्जॉर्प्शन के लिए ही, आयरन का एब्जॉर्प्शन के लिए ही विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो विटामिन सी इज अ वाइटल फूड। एंड जो आपकी हर्ब्स हैं, ठीक है, उनमें विटामिन ई रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर बॉडी। धनिया लीजिए, पुदीना लीजिए, दीज आर द हर्ब्स विच यू कैन टेक। नाउ लिटिल बिट कमिंग टू द, व्हेन वी से, हमने आहार का बात किया, विहार का बात किया, औषध। तो कौन सा औषध है जो घर में ही अवेलेबल है और आपको क्लीनिंग दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया क्लीनिंग कहां से आना है, ऑक्सीजन से आना है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो लौंग है आपकी किचन में, लवंग, क्लोव, दिस इज हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी। 3 लाख से अबव कैपेसिटी है क्लोव में ऑक्सीजन को अंदर ले लेने की, एब्जॉर्ब कर लेने की। इसीलिए बोला जाता है आप लौंग चूसते रहिए, ठीक है, जिससे आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी।
I'm getting multiple surprise emojis, right? Yes, this is definitely surprising. क्यों हम लौंग खाते हैं? Because this increases the oxygen supply in our body. Even आप अपनी पूरे घर में कहीं ना कहीं लौंग रख सकते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं अपने पास लौंग साथ में रख सकते हैं। इसी के साथ में जितने आपके स्पाइसेस हैं, क्यों इंडिया के स्पाइसेस इतने ज्यादा फेमस हैं? वन, बिकॉज दे आर हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंट कैपेसिटी। चाहे वो लौंग है, चाहे वो दालचीनी है, चाहे वो अदरक है, चाहे वो पिपली है, right? These all things are very, very oxygen absorbent capacity hubs. That's why I'm saying आपको बाहर जाना ही नहीं है, आपकी किचन में सब कुछ है। आप मुंह में रखना चाहते हैं, इलायची मुंह में रखिए, लौंग मुंह में रखिए। अगर आप रखना चाहते हैं, आप इनका काढ़ा बना लीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए, तो आपको क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी में एकदम से ये इन्फ्यूज हो जाएगा। कोई भी चीज आप काढ़े की फॉर्म में लेते हैं, उसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि वो पूरी बॉडी में, क्योंकि गर्म है, लिक्विड फॉर्म में है और उसका एक्सट्रैक्ट हर्ब का पूरा उसमें आ चुका है, वो चैनलाइज हो जाता है, एकदम पूरी बॉडी में फैल जाता है, राइट? तो उसी तरीके से आप ग्रीन टी इज ऑल्सो हैविंग वेरी गुड ऑक्सीजन एब्सॉर्बेंट कैपेसिटी। दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी पीजिए, 1 से 2 बार काढ़ा पीजिए, ठीक है? काढ़े में आप, जैसा मैंने आपको बताया, लौंग डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं, पिपली डाल सकते हैं, बड़ी इलायची डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं। ये सब चीजें मिला के आप एक एक करके, जीरा डाल सकते हैं, ये एक एक करके बना सकते हैं, या फिर इन सबको इकट्ठा करके भी ले सकते हैं। धनिया आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। इतना अच्छा माध्यम है ये कि इवन हमने आयुर्वेदा में सिर्फ और सिर्फ धनिया का काढ़ा पिला पिला के लोगों का थायराइड नील किया है। This is that much potent. So we can some other time discuss in detail on this part. So just coming back, these are the ways. और same thing आपको environment में भी करना है। आपको ऑक्सीजन सप्लाई वाले प्लांट्स अपने घर में अंदर भी लगा के रखने हैं, ठीक है? आपके बेडरूम में भी लगा के रखना है, जैसे एलोवेरा है, लौंग है, इस तरीके के तुलसी है, राइट? इस तरीके के प्लांट्स आप जितना अपने घर में रखेंगे, उतना ऑक्सीजन सप्लाई आपके घर में बेहतर होगी। तो आपके घर में भी अच्छी हो गई, आपकी बॉडी में। हमने डाइट की बात की, हमने लाइफस्टाइल की बात की, और हमने बात की हर्ब्स की। अभी हम बात करते हैं, दिस वाज अबाउट द बॉडी। अभी हम अगेन बात करते हैं मेंटल क्लीनिंग की, राइट? मेंटल क्लीनिंग 3 तरीके। एक, हमने पहला बात कर दिया, रिलैक्सेशन, खुश रहिए, राइट? दूसरा, डीक्लटर। जितना आपके माइंड में थॉट्स आप ऑक्यूपाई करते रहेंगे, उतना क्लटरिंग होता रहेगा। आपको घर में क्लटरिंग नहीं अच्छा लगता, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी को आपके माइंड में क्लटरिंग अच्छा लगेगा? कभी नहीं। हमेशा फ्री रहिए, हमेशा फोकस अपना। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस, एंड दिस वर्ड इज नाउ जस्ट एज अ I will say viral in throughout the world. Mindfulness is nothing but keeping yourself focused. हमेशा इधर ये विचार, वो विचार, उन सब में नहीं फंसना है। आपको चूज करना है, मेरे लिए ये है, मुझे इस पे ही आगे बढ़ना है, राइट? कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, वो मेरा काम नहीं है। मुझे ये देखना है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल है, लेट मी गो फॉर इट। आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, राइट? आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, लेकिन मल्टी एक्सपर्ट हमेशा नहीं हो सकते। सो जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए, आपके माइंड को सुकून मिलेगा। थर्ड, इसी को जब आप खुद पे एम्फेसाइज करके थोड़ा टाइम खुद को देंगे, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, खुद से जुड़ने का, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। 5 मिनट आप खुद के लिए बैठे, आपने अपनी ब्रीदिंग पे फोकस किया। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को,
दैट इज वेरी सिंपल वे ऑफ मेडिटेशन। आपने देखा, आप सिर्फ अपनी ब्रीथ पे फोकस कर रहे हैं, आई एम टेकिंग इन, आई एम टेकिंग आउट, एंड आई टेल यू वेरी वेरी गुड वे, जो कि आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, सबको बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं और आपका लिम्फेटिक चैनल को एकदम स्टिमुलेट कर देता है। जब भी आप अपने साथ जुड़ने के लिए 5 मिनट बैठे, तो अपने हाथ अपने स्टमक पे रख लीजिए और सांस भरते हुए अपना पेट फुलाइए। इस तरीके से सांस छोड़ते हुए मुंह से सांस छोड़िए और पेट अंदर ले जाइए। This is called abdominal breathing. This is very, very important to clean your system. Clean your mind. आपका ध्यान आपके ब्रेथ पे रहेगा, आप अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, आप अपने माइंड को क्लीन कर रहे हैं, राइट? तो जो इसके बाद मैकेनिज्म शुरू होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, जो हमने अभी तक बात की। This is the main pathway to proceed on the immunity. आपकी 70% इम्यूनिटी हाइजीन में ही है। आप अदरवाइज, अगर आज मैं आपको डायरेक्टली ये बोलती हूँ कि आप अश्वगंधा ले लीजिए जो बहुत ही इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आप शतावर ले लीजिए, तो शायद आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बॉडी क्लीन नहीं है। तो आप जो भी लेते हैं, दैट्स वाई the proper education is very much required, proper consultation is very much required. आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है वो आपको आपके डॉक्टर्स, आपके चिकित्सक, आपके परामर्श के दौरान ही आप इस बात को पता लगा सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि अगर मैं अश्वगंधा ले रहा हूं तो क्या वो मेरे लिए उपयुक्त है, then only you go for. But cleaning is the way which is very much perfect and very much required, I will say utmost required for each and everyone. सबसे पहले ये कीजिए, उसके बाद जितनी भी आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ड्रग्स है, जैसा मैंने बात की अश्वगंधा की, एक शतावर, इसमें रहता है मुलेठी, राइट? ये सब चीजें हैं, और इवन हमारा आयुष विभाग भी इन सब को रिसर्च कर रहा है हमारे ट्रीटमेंट्स के लिए भी। दीज आर वेरी वेरी पोटेंट हर्ब्स टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, राइट? अश्वगंधा एक नेचुरल प्रोटीन है, शतावर एक नेचुरल प्रोटीन है, एंड वी आर ब्लेस्ड बीइंग इन इंडिया, वी हैव दीज drugs, these herbs in sufficient amount. तो आपको दोनों काम करने हैं। पहला, अपनी बॉडी को क्लीन बनाते जाना है, दूसरा अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है, राइट? लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज तब तक सुंदर नहीं दिखेगी, तब तक मजबूत नहीं बनेगी, जब तक आप उस चीज को पहले क्लीन नहीं करते हैं। नाउ आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, hygiene, but we have to include the word internal hygiene when we say what is more important, hygiene and immunity. So both are important, both goes hand in hand. We cannot keep one thing and make one thing away and make other thing in prominence. अगर आपको इम्यून बनना है तो आपको बाहर अंदर पूरा क्लीनिंग रखना है, राइट? रेगुलर क्लीनिंग डेली रखना है, कभी कभी एक्सटेंसिव क्लीनिंग करना है। एक्सटेंसिव क्लीनिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम मॉडर्न भाषा में, हम इसको डिटॉक्स बोलते हैं। आप हफ्ते में एक बार एक तरीके का फास्टिंग रख सकते हैं, ठीक है? या तो आप एकदम लिक्विड डाइट पे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा लिक्विड डाइट पे सजेस्ट नहीं करूंगी, प्रैक्टिकली इजी नहीं होता, आपको प्रोग्रेसिव वे में इसमें जाना है। पहले आप अपना सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है? फिर दूसरे दिन आप मिल्क प्रोडक्ट बंद रखिए, उसके साथ साथ में अन्न की मात्रा 3 बार से 2 बार कर दीजिए। तीसरे दिन अन्न की मात्रा 2 बार से 1 बार कर दीजिए, और चौथे दिन नो मिल्क प्रोडक्ट्स, नो मिल्क, उसके साथ साथ में नो सीरियल्स। आप फ्रूट खाइए, आप
अपना वेजिटेबल्स खाइए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए, जिससे आपका बॉडी क्लीन होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होगा। जितने मिनरल्स विटामिन्स आपको, आप याद रख सकते हैं, आपको इजीली ये पूरा का पूरा, और हम भी डिस्कस करते रहेंगे। इवन इंटरनेट पे हर जगह ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि किसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है, लेकिन वो चीज डाइजेस्ट कैसे होना है वो बहुत जरूरी है। तो दूसरा बात हमको जो इस सब के साथ में ध्यान रखना है, इस कोरोना पीरियड में आपको दो सिस्टम है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है और हम सबकी इकट्ठे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट कोविड-19, हमको दो सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्लीनिंग भी और स्ट्रेंथ भी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन कैसे करना है, आपको ब्रीदिंग करते रहना है, आपको हर्ब्स लेना है, आपको काढ़े पीने हैं, ठीक है। एक और मैं आपको हर्ब बताती हूँ, एक्टिनेशिया, दैट इज माय फेवरेट। I always, this is my drug of choice whenever I speak, and even I have cured asthma patients also with a simple herb echinacea, इसको हिंदी में कालमेघ बोलते हैं। ये दोनों सिस्टम्स पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके लीवर पे भी और आपके लंग्स पे भी। ये पूरा का पूरा क्लीनिंग कर देता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। दो काम होंगे इससे, म्यूकस जो था वो बाहर निकल जाएगा, और क्योंकि ये लीवर को स्टिमुलेट करता है तो नया म्यूकस बन नहीं पाएगा, राइट। तो आपके दोनों पर्पस इससे सॉल्व हो गए, म्यूकस को बनने नहीं देना और जो है उसको बाहर निकाल देना है। और आपने ये देखा होगा कि कोविड-19 में सबसे ज्यादा बात म्यूकस का ही होता है। व्हाट इज द किलर इन कोविड-19? म्यूकस। म्यूकस इतना डेंस हो जाता है कि जाके जम जाता है, फाइब्रोसिस कर देता है लंग्स का, राइट। सो आपको इन सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं, दैट मीन्स आपको अपना डाइजेस्टिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बना देना है। पहला, जब आपने क्लीन किया तो ऑटोमेटिकली आपकी फायर इग्नाइट हो जाएगी, राइट। सेकेंड थिंग, आपने जो हर्ब्स ली, दोज हैव फायर कंपोनेंट। हमारा बॉडी ही 5 चीजों से बना है, पूरा एनवायरमेंट 5 चीजों से बना है। I will just would like to conclude this session with this main component. But we are made up of air, that means oxygen, fire, agni, jal, water, पृथ्वी, अर्थ, एंड स्पेस, आकाश। इन 5 चीजों को से हमारा बॉडी बना है, और अगर हम इन 5 चीजों को एनवायरमेंट में क्लीन रखते हैं और हमारी बॉडी में भी उनकी जगह देते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमने बात की एयर की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे प्यूरिफाई करना है, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में कैसे पहुंचाना है, राइट। हमने बात की अग्नि की, अग्नि को कैसे जलाना है। बहुत और ऐसी चीजें हैं जो आपकी डाइजेस्टिव, बहुत सारी योगिक क्रियाएं हैं, आपका मंडूकासन, आपका पवन मुक्तासन, जो आपकी बॉडी में फायर को इग्नाइट करते हैं। जो जितने भी आपके स्पाइसेस हैं वो डेफिनेटली दोज आर प्योर सिनोनिम ऑफ फायर इन योर बॉडी। जब हम बात कर रहे हैं आपके अर्थ कंपोनेंट की, आपको ग्राउंडेड रहना है। जहां हमने मेंटल पीस का बात किया, जहां हमने कामनेस का बात किया, तो हम अर्थ कंपोनेंट अपनी बॉडी में ला रहे हैं। जब ये 5 चीजें हमारी बॉडी में बैलेंस में रहेंगी, राइट। व्हाट इज द फोर्थ वन? स्पेस। जब हमने क्लीनिंग किया तो हमने जैसा हम सोशल डिस्टेंसिंग एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, वैसा ही डिस्टेंसिंग हम अपनी बॉडी में बात कर रहे हैं। सो दैट विल गिव द स्पेस कंपोनेंट इनसाइड आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, आपकी आर्टरीज क्लीन हो जाएंगी, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, राइट, ठीक है। जितना ब्लड सप्लाई होगा उतना ही ऑक्सीजन फ्लो होगा। सो वी स्पोक अबाउट एयर, वी स्पोक अबाउट earth, we spoke about fire, we spoke about space. Now the very important factor, water. जब हम water का बात करते हैं तो please try to understand water is a most important thing by the component also and by its
मेमोरी पावर ऑल्सो, वाटर मेमोरी लेके चलता है, वाटर वाइब्रेशंस लेके चलता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर याद रखना है, टैप में से, चाहे वो आपका आरओ ही है, वाटर नहीं लीजिए। हमेशा वाटर को किसी वेसल में रख के रखिए, और बेटर है आप 24 आवर्स के लिए उसको एक जगह पे रखिए। दो फायदे होंगे, एक आपका डस्ट सेटल हो जाएगा जो बचा भी था, और दूसरा उसका जो वाइब्रेशंस कहीं से भी वो फ्लो होके आया था वो सेटल हो जाएगा, और आप ऊपर ऊपर से लेंगे, और नीचे के लिक्विड्स हमेशा छोड़ दीजिए, हमेशा फेंक दीजिए उनको। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको अर्थन पोर्ट में रखते हैं, आप इसको कॉपर जग में रखते हैं, राइट। दिस विल इंक्रीज द मोर प्यूरिफिकेशन लेवल इन द वाटर। बहुत ही एक अच्छा वे है, आप रात में कॉपर जग में वाटर भर के रख दीजिए, और उसमें 5-7 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए, और फिर उसको पूरा दिन यूज कीजिए। आपका वाटर एकदम प्यूरिफाई हो जाएगा, आपके सब फैक्टर इसमें आ गए। वाटर सेटल हो गया, वाटर का वाइब्रेशन सेटल हो गया, राइट। वाटर का डस्ट पार्टिकल सेटल हो गया, आपने तुलसी से उसको प्यूरिफाई भी कर दिया, एंटीवायरल भी कर दिया, और कॉपर का भी असेंशियल कंपोनेंट उसके अंदर आ गया। कॉपर इज अ वेरी 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 प्योर मेटल, और आपने अभी साइंस के माध्यम से अभी जाना भी होगा कि कॉपर इज द मेटल वेयर ओनली दिस COVID-19 कैन स्टे ओनली फॉर 4 hours, नॉट मोर देन दैट। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्लास्टिक में वाटर इज पॉइजन, कुछ भी नहीं रखना है आपको प्लास्टिक में, राइट। सो इस तरीके से हम एक एक दिस all the factors are one factor where we can spend one session on this as per your requirements. So I will just summarize again this part what we have discussed, that hygiene and immunity both are very very important, goes hand in hand. Only with the immunity we cannot work until and unless we clean our mechanism. So if I have to choose between hygiene and immunity, if I don't have the third option both, I will first choose hygiene, right. Then हमको कैसा करना है हाइजीन, दो बातों का ध्यान रखना है, जो टॉक्सिन्स है वो हटाना है, ऑक्सीजन फैलाना है, घर में फैलाना है, बॉडी में फैलाना है, बॉडी में म्यूकस को हटा देना है पूरे अच्छे से। कैसे, हमने 3 चीजों की बात की, डाइट, लाइफस्टाइल एंड हर्ब्स, right. On each and everything we can discuss more and more in detail, but the relaxation, the oxygen rich plants, oxygen rich herbs, oxygen rich diet, oxygen rich lifestyle is the main tool. उसके बाद हमको हर्ब्स पे आना है, और हमारे पांचों के पांचों कंपोनेंट्स को, एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ component of our body, we need to balance each and every component our body, we need to give importance to each and every component of our body, then only we will be healthy, and in healthy body there is health, right. That's why it is told you are what you eat. And whenever you say eat word, whenever you say diet word, please understand diet is not only the food material what you eat. आप जो सोचते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वो सब डाइट का ही पार्ट है। One is mental eating, one is physical eating, both are diet, right. So now I think this is all how we can enhance our immunity. There are few other things also, Sitopladi Churan, these all things which also can increase your immunity, but I will advise whenever this is coming to the treatment part, very well treatment is there possible with Ayurveda for COVID-19, but I would always request you to consult your doctor, even if you are choosing your herbs also, which are best for your body. Somebody can have Vata component more, somebody can have Pitta component more, somebody can have Kapha component more. Know your constitution,
Then accordingly, you please check with your consultant what is best lifestyle for you, and accordingly what are the best drugs. Don't ignore the symptoms. अगर आपको फीवर हुआ है, कफ हुआ है, आप अपने कंसल्टेंट को तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए. दे कैन माइट सब्सक्राइब यू लक्ष्मी विलास रस, सीतोपलादी चूर्णा, त्रिभुवन कीर्ति रस, सुदर्शन घनवटी. We in Ayurveda, we are loaded with all kind of formulations, antiviral, immunoboosters, immunomodulators, right, detoxifying, and also we call the rasayana varga, which is completely increasing your intensity. This chavanprasha is one of that. So those all kind of things are there. Whenever this is required, you can consult us, you can consult Essentials Veda, you can consult any of your choice of physicians, but do consult for sure. Right, now coming to the inquiries part. So Poonam ji has asked for the specifically for the second trimester of the pregnancy. So in second trimester, Poonam ji, there is basically the development of the body organs, okay, internal body organs, which all are coming in a proper shape. So you need to basically work on all the components of the pregnant lady. You need to be very careful here. The diet part and the breathing exercise is very much important. You need to give time the female to spend time on the breathing exercise. But what she cannot do, she cannot do Kapalbhati, she cannot do the intense exercise where the pressure is on the abdominal cavity, right? She can do the Anulom Vilom exercise, she can do Bhramari, she can do the stretching exercises, the sidewise stretching exercises, she can do butterfly. She should do these all things. In the food, you should choose the component which are high in the protein. You should choose the paneer component, you should choose the milk components, and but again you should give this all with the intervals, right? You should more focus on the vegetables which are rich in protein. Go for the more veg proteins, for example the spinach, the broccoli, the mushrooms. Mushroom is a very good protein. And also alkalizers, right? Alkalizers concept I think we can take in some other session. So these all are the things. For the tonic, you can give tulsi for the cleansing to the pregnant lady without any doubts. Okay, you can apply always the oil medicated with in the nasal area, in the ear area, so that no viruses are coming in touch with that female. It is not getting inside. You can even apply this oil on the external body. You can medicate this oil with the neem leaves also, which will make a layer between the body, internal body and the external environment. So if you have any more specific things, you can ask me separately also. So Meenakshi ji has said that yes, early to sleep and early to rise is very much important. So I'm getting very good feedback for this all, and I'm getting the demands for the next sessions also, definitely, because this is really a very vast topic, never can be completed in one session, and on each and every component what we discuss we can have a separate session. But this was the beginning, okay, and I think the beginning was good, that we have understood that yes, cleaning stands before anything else, whether it is the external part or the internal part. So let's go, let's start, and let's take an oath that we will start our lifestyle that way, so that no one thing is dumping on the another thing. This is the most important thing. Don't eat if you don't feel like eating. Okay, don't drink if you don't feel like drinking, and give proper timings to chew your food, give proper timing to feel what you drink. The proverb is eat what you drink and drink what you eat, right? So I think we can finish this session. If any of you have other queries, we will take in the next session. So yes, even I'm getting the messages that enjoyed the session. Even I enjoyed refreshing my knowledge and sharing, and knowledge is the thing which increases with the share, right? So yeah, so I would take permission from you all on the behalf of Essentials Veda
Goodbye, everyone. See you again. Keep healthy, keep happy. Now, I cannot say stay home, but stay aware, right? And stay clean. So, let's just take a bit with this sentence. Sure. Thanks. Thanks, you all. Bye bye.